क्या आप भी मेरी तरह एकदम फिटनेस फ्रीक हो, या आप सिर्फ कैजुअली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हो? और मे बी यू हैव फाइनली डिसाइडेड अब बहुत हो गया, अब से सिर्फ हेल्दी। So no matter what category you fall into or the kind of a person you are, but if you are in the market looking for a fitness tracking device, then I'm going to convince you today that why the Amazfit Helio Strap is the only tracking device that you should have, which costs just 8,500 rupees and nothing else. So let's get started. I'm gonna divide this entire video into two parts. Part number one, wherein I talk about that if you are dedicatedly looking for a fitness tracking device, then why Amazfit is better than rest of the competition out there. And in the part two, we're gonna talk about that if you already have a smartwatch, be it Apple Watch, Galaxy Watch या किसी और ब्रांड की वॉच, तो क्या आपको एक्चुअली में एक और फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस चाहिए अपने दूसरे हाथ पे? We gonna talk about both of these. In this entire video, I'm not gonna bore you with the spec sheets or a detailed comparison, क्योंकि now in 2026 अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से मैच्योर कर गई है कि आप किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड से अगर आप एक फिटनेस ट्रैकर ले रहे हो तो मोर और लेस वो अच्छे से ट्रैक कर ही लेता है डेटा। और इन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपना डेटा उठा के देखोगे तो आप ट्रेंड वाइज कंपैरिजन करते हो कि हाँ क्या मेरा वेट कम हुआ, क्या मेरा स्लीप साइकिल बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है। तो मोर और लेस all of these devices are good enough. आप इनमें से आप कोई भी लोगे, you will not go wrong. But I'm gonna tell you the reasons why I chose this 8,500 का Amazfit over every other thing that is available in the market to track your health. As simple as that. अब talking about Whoop, उसका latest version is Whoop 5.0. अब Whoop is perfect in every sense. मतलब the kind of metrics you get about your health, the depth of it, I would say mind blowing. And then aesthetically भी बहुत ज़्यादा appealing है। आप उसकी UI वगैरह देखोगे ऐप का, yep, everything is just perfect. But the only problem is that hefty price subscription model. अब अगर ये one time cost होता तो मे बी हम अलग तरीके से बात कर रहे होते, but now that you know that you have to pay every year 25 to 35,000 just to continue using Whoop, so somehow I think for 95% of the population out there who's looking for a fitness tracking device, तो उनके लिए इतना spend करना would not be worth it. And I am a part of that 95% population. Hence, I had to eliminate Whoop. And yes, speaking about battery life, Whoop also has an accessory which is a charger that you can place over your Whoop band, and what it will essentially do is charge it while you are using it. तो in a way वो एक कंसर्न जो है ना आपका कि यार मेरी जो बैटरी खत्म होने वाली जो एंजाइटी है तो वाली तो प्रॉब्लम ही नहीं है Whoop में। Now speaking of the other alternative, which is the recently launched Google Fit Band. It is a beautiful band, a beautiful tracking device which doesn't look like a tracking device but more of an accessory on your hand. बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब मैंने तो उसकी वीडियोस वगैरह देखी, फोटोज देखी, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, आई नीड टू स्विच टू दिस। और मैं बिल्कुल कन्विंस था कि मैं वो ही लूँगा, क्योंकि देखो पहली बात तो अगेन जो Whoop के साथ प्रॉब्लम है वो नहीं है उसमें। 9 से 10 हज़ार रुपये का डिवाइस है, एटलीस्ट बाहर इंडिया में आएगा 1,500 रुपये और आप लगा लो ऑफर्स वगैरह, तो मेरे हिसाब से प्राइस इज वेरी वैलिड। 9 से 11 हज़ार के बीच में होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है, सो देयर इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल इन गूगल हेल्थ ऐप, जिससे कि आपका गूगल फिट बैंड जो है वो की पेयर होगा।
बट दैट कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल एंड जस्टिफाइड. मेरे ख्याल से कुछ 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी मुझे जस्टिफाइड लगा. और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इतने ज्यादा आपको एडिशनल मैट्रिक्स या एडिशनल डिटेल्स मिल जाएंगी कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो योर बैंड इज अ वेस्ट लाइक वूप. तो वो वाली चीज नहीं है. तो आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड टू गेट इट, but the battery life. अब Google promises 7 days of battery life, but in real world, speaking of my experience with Pixel devices and everything, I know totally different things, different category. उसमें tensor processor है, ये वो सब ठीक है. But it's just that I believe कि अगर Google 7 days की battery life promise कर रहा है, in real world usage, I would say it would come down to 5 days or maybe 6 days. वहीं Amazfit का ये Helio strap I've been using since like what 4 to 5 months now, and इसने मुझे consistently 10 दिन की बैटरी लाइफ दी है हर बार. तो अब ऐसे लगता है कि ठीक है यार, गूगल का डिवाइस ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, तो इतना तो हम 5 दिन में तो एक बार हम चार्ज पे लगा ही सकते हैं. बट इफ यू सी इन अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको ज्यादा चार्ज पे लगाना पड़ेगा एक गूगल फिट बैंड को इन कंपैरिजन टू दिस अमेज़फिट. एंड बाय द वे, कई लोगों के ऐसे कंसर्न्स होते हैं कि ठीक है यार, वूप वाला यूआई अगर हमें नहीं मिल सकता, इतनी इंट्यूटिवनेस ऐप की नहीं मिल सकती, तो ठीक है, हम बैटरी लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. व्हाई नॉट गेट गूगल फिट बैंड, और एटलीस्ट वो गूगल हेल्थ से पेयर होगा और उसके अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल उसका भी यूआई है. और वहीं अगर मैं अमेज़फिट की बात करूं तो इट पेयर्स विद एन ऐप विद द नेम ऑफ ज़िप. तो वो इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है, फन टू यूज़ नहीं है, एस्थेटिक नहीं है, बट what you can do is that Amazfit जो है, it is compatible with Google Health Connect on Android and with Apple Health in iOS. So once you sync in these, then all your data from your Amazfit band comes to your Apple Health, and if you're using an Android device, then the possibilities are endless. आप उसे Google Fit के अंदर अपना सारा डेटा देख सकते हो अगर आपको उसका UI पसंद है. या as a matter of fact, सेम Google Fit Band वाली जो ऐप है, the recently launched Google Health ऐप, उसके अंदर भी आपका सारा डेटा आपको दिख जाता है. एंड देन देयर इज अनदर ऐप which I have started using just 2 days before with the name of Guava. उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा. You can also try that app. It's a very fun to use app, and it gives you very detailed metrics as well. Somewhere between Whoop and somewhere between Google Health. So this is how I ended up buying Amazfit over the 2 biggest alternatives out there, which are Whoop and Google Fit Band. Up coming to the part 2 of the video, wherein I tell you कि if you already have a smartwatch, be it Apple Watch or be it Galaxy Watch या किसी और ब्रांड की smartwatch, so do you really need a dedicated fitness tracking band on your other hand? Then the answer is absolutely yes, if you are a person like me. I have 3 big traits, or I would say problems with me. If we have that in common, then definitely you need a dedicated device. Problem or trait number 1 that I have is that मैं अपने devices को कभी भी टाइम पर चार्ज पे नहीं लगा सकता. अब इनकी बैटरी लाइफ, बीट एप्पल वॉच या गैलेक्सी वॉच 8, इन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे हमेशा 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ दी है. और मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं जो कि टाइम पे अपनी वॉचेस या अपने गैजेट्स चार्ज पे लगा सके. तो होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे कि आई लूज ऑन माई हेल्थ डेटा. अब कभी कभी होता है कि मैं बिल्कुल ही टाइम पे इसे चार्ज पे लगाता हूँ, और कभी कभी होता है भाई हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए और ये चार्ज पे नहीं लगी, और अब नहीं है तो नहीं है, और देन आई लूज ऑन दैट कंसिस्टेंट हेल्थ डेटा दैट आई वांट इन माय ऐप. अब सेकंड प्रॉब्लम विद मी इज दैट आई जस्ट कैन नॉट वियर एनी एक्सेसरी ऑन माय बॉडी. मेरे गले में कोई लॉकेट नहीं है, मेरे हाथों में कोई रिंग्स नहीं है. तो व्हेन आई वोर एप्पल वॉच
या फिर गैलेक्सी वॉच 8 जो कि कंपैरेटिवली थिन भी है और लाइट भी है, मैंने इन दोनों को कोशिश करी कि मैं रात को सोते हुए पहनूं सो दैट आई कैन ट्रैक माई स्लीप, बट ये दोनों मैं कभी भी हाथ पे नहीं पहन पाया। खैर आधे टाइम तो बैटरी लाइफ ही नहीं होती थी तो पहनता कैसे, बट कभी अगर ये चार्ज होता भी था 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जब मैं बिल्कुल ही सो ही नहीं पाता था तो मैं इन्हें उतार के ही रख देता था। बट सरप्राइजिंगली this Amazfit band, this is so light and this is so comfortable to wear कि I have gotten used to it and now I can sleep with this on. And अब जब से ये मेरे हाथों में है तब से मेरे पास continuous data है about my health and my sleep. And now the third biggest problem that I have is my obsession with data and its accuracy. तो मतलब मैं उस तरीके का बंदा हूँ कि अगर मान लो कहीं जाना है और वो भी उस रास्ते पे जहाँ पे कि मैं बचपन से जाता आ रहा हूँ, उसके बाद भी भाई सबसे पहले गाड़ी के अंदर गूगल मैप्स ऑन होगा। एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। अब मुझे जानना है कि भाई रास्ते में कोई क्रैश रिपोर्टिंग तो नहीं है, या मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज वाई my obsession with data and its accuracy also lies with my decision of buying a fitness tracker. अब है क्या, जो आपकी ये स्मार्ट वॉचेस हैं, अब ये छोटे छोटे से डिवाइसेस हैं, इनमें छोटी छोटी सी बैटरीज हैं, 1-2 दिन लास्ट करते हैं। अब है क्या कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ मॉनिटर करना नहीं है, बट और भी 10 काम करना है। आपको टाइम दिखाना, एक ब्यूटीफुल यूआई प्रेजेंट करना, फिर एप्स चलाना, और भी 10 चीजें। तो दे हैव टू इंश्योर कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत एफिशिएंटली यूज हो, कि हेल्थ डेटा भी ट्रैक हो और प्लस आप और फंक्शनैलिटीज को भी एक्सेस कर सको। तो उसके अंदर होता क्या है कि ये हर समय कंटिन्यूसली आपका डेटा मॉनिटर नहीं करते हैं, बट एक इंटरवल पे आपका डेटा रिकॉर्ड करते हैं, विच यू सी इन एप्पल हेल्थ, सैमसंग हेल्थ, या फिर कोई एक अदर ऐप जो भी आपकी वॉच सपोर्ट करती है। और वहीं एक डेडिकेटेड फिटनेस बैंड का तो काम ही सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ मॉनिटर करना है। तो कंपैरेटिवली द रिकॉर्ड कीपिंग इंटरवल्स आर वेरी वेरी शॉर्ट। तो ये ज्यादा रिकॉर्ड करता है डेटा, क्योंकि इसे और क्या करना है भाई, ना स्क्रीन है ना कुछ है, तो ये बस डेडिकेटेडली आपका हेल्थ ही तो रिकॉर्ड कर रहा है। तो व्हेन यू हैव मोर डेटा in less time frames, then of course it has to be more accurate. Talking about problems, honestly, when I was making a purchase decision, और जब मैं Reddit की communities वगैरह visit कर रहा था या overall search कर रहा था, तो I saw a lot of people complaining. But surprisingly, for me, I have faced zero issues in these 5-6 months of usage with my Amazfit. मतलब I really have nothing to complain. अब but if I have to be very picky and think of कि भाई मुझे किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम है, then I think मेरे 2 छोटे मोटे concerns हैं which are not even deal breakers, but at least you should know about them. Number 1, इसका चार्जर। एक बार आप इसके चार्जर को आप ध्यान से देखो। अब वैसे तो ये मैट ब्लैक कलर का है और बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं है कि तड़कता भड़कता फैंसी सा हो और शाइनी सा हो, बड़ा एलिगेंट है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इसका साइज। अब ये इतना छोटा है कि आई नो एज अ पर्सन लाइक मी, मैं इसे 100% आज नहीं तो कल मैं इसे घुमा दूंगा। तो दैट इज समथिंग that concerns me a little bit. अब मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम भी नहीं है, it's just if I really have to pick कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो one is इसका चार्जर, and the second thing if I really have to pick is इसके aesthetics। मतलब it doesn't look very premium और up market। मतलब हाँ फिटनेस ट्रैकर है तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हायर मैं एक फिटनेस ट्रैकर हूँ, बट when you look at the recently launched Google Fit Band, then you feel कि हाँ यार, मतलब that is how a fitness band should look like. It is more like an accessory or a casual band which actually enhances how it looks rather than ये जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि yes भाई, I'm a
नॉट वेरी एक्सपेंसिव फिटनेस ट्रैकर. और एक्सेसरी सपोर्ट भी मुझे इसके अंदर काफी लिमिटेड लगा. मतलब व्हेन आई गो टू Amazon, Flipkart या इवन बाहर की वेबसाइट्स भी, तो द बैंड्स are either very expensive or not of very good quality. So for now I am sticking to the original one. So now let's just assume कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ ठीक है यार, अमेज़फिट ही परचेज कर लेते हैं, बट इसको एक्वायर करना भी एक अलग ही भसड़ है. तो पहली बात तो अगर आप अमेज़फिट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे इंडिया वाली, उस पे तो सिंस मंथ्स इट इज स्टॉक आउट, तो है ही नहीं. आप Amazon, Flipkart ये सब देखोगे, नो चांस. So how do you really acquire it? So there are multiple ways of getting it. How I got it was through OLX. अब OLX पे I saw a listing, someone who was actually using it since 2 months. उसके बाद भी they listed it at a price of 13,500 and I had to pay 4 या 5,000 रुपए ऊपर than its original price, that too for a used one, to get this one. The other way and the cheapest way of getting this is कि अगर आपका कोई मामा चाचा ताऊ, any relative or friend is coming from abroad, तो you check वो जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ की अमेज़फिट की वेबसाइट और वहाँ की बाकी शॉपिंग वेबसाइट्स, and there are high chances that you'll get it. Although internationally भी ये बहुत जगहों पर स्टॉक आउट है, but recently my friend was coming from Singapore, तो मैंने वहाँ पर चेक करा, अवेलेबल था Amazon पे, और that too 8, 8,500, 9,000 रुपए की रेंज में. And then another way of acquiring this is to go to this dedicated community on Reddit wherein people buy and sell अमेज़फिट के स्ट्रैप्स इन इंडिया. अब वहाँ पर भी मोर और लेस आपको दो ही तरीके के सेलर्स मिलेंगे. एक जिन्होंने की बाहर से ही मंगवाया लेकिन एक्स्ट्रा मंगवा लिया टू सेल इट एट अ सर्टेन मार्कअप, और मे बी किसी ने यूज करा 2-3 महीने एंड देन उन्हें लगा कि नहीं यार आई शुड अपग्रेड टू समथिंग एल्स, so they decided to sell it off. So guys, these were my reasons why I chose Amazfit over everything else. Do you guys agree with me, or do you think Google Fit, Band, or maybe Whoop, or maybe something else is better? Do let me know in the comment section below. And do not forget to subscribe to AJ9017, where we only talk about tech in the easiest way possible. No tech specs, hence no confusion. Just hands-on, real life experience. So this was my time. See you in the next one. Bye.